بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. امام رضا علیہ السلام کی ایک نماز ہے جو بہت ہی مجرب نماز ہے کہ جس کے لیے سید ابن طاؤس نے اور شیخ کفامی نے اور دیگر بہرحال علماء نے اس کو نقل کیا ہے اس نماز کو، اور کافی ادعیہ کی کتابوں میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے. امام رضا علیہ السلام سے ایک بہت ہی مجرب مولا امام رضا علیہ السلام کی نماز ہے، 2 رکعت حاجت کے لیے کہ کیسی بھی حاجت ہو، کسی بھی طرح کی مشکل پریشانی ہو، روزی روزگار کی ہو. اکثر لوگ شکوہ کیا کرتے ہیں کہ روزیوں میں خیر و برکت نہیں رہی، روزی کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اپنے ہم سے دور ہو چکے ہیں، لوگوں کے دل میں ہماری محبت باقی نہیں رہی. یا اور بہت سے لوگ شکوہ کرتے ہیں ہم پر کسی نے اس طرح سے ظلم کیا ہے، ہمارے حق کو لے لیا ہے. یا کوئی ایسا شخص کہ جو بہت ہی بڑا کاروبار کرنے والا انسان تھا اور ایک دم ہی سے آسمان سے زمین پر آ گیا. یہ اپنی زبان میں کہہ دیا جائے کہ کشتیاں ڈوب جانا، یعنی بالکل اول سے زیرو ہو جانا، صفر ہو جانا. اس نماز ہی کو بہرحال ہم و غم و اندوہ کے لیے اس نماز کو پڑھا جاتا ہے. کیسی بھی مشکل ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، مجھے نہیں معلوم کہ کون سی مشکل ہے آپ کی، کون سی پریشانی ہے. ہر طرح کی جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں، جس طرح کی بھی کوئی مشکل ہو، کیسی بھی آپ پر پریشانی، گرفتاری، مصیبت، آزاری کچھ بھی اگر آپ پر آئی ہو، بیماری آئی ہو، اور ایسی بیماریاں جو صابل علاج ہو چکی ہوں، یعنی ہر چیز کے لیے، ہر غم و اندوہ کے لیے، ہر مشکل پریشانی کے لیے یہ اکثیر ہے یہ نماز مولا امام رضا علیہ السلام کی. اور مولا سے بہرحال توسل کرنا امام رضا علیہ السلام سے، کیونکہ امام رضا کو امام رضا غریب بھی کہا جاتا ہے کہ غریبوں مفلسوں ہر کسی کی مولا امداد ہمیشہ کرتے رہے. اور اگر اس کو اور واضح کر دیا جائے تو امام رضا علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ جب بھی کبھی تم مصیبتوں میں گھرنا، دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہونا، تم ہم سے امداد کرنا، ہم سے مدد مانگنا، میں رضا تمہاری مدد کروں گا. باقاعدہ حدیث موجود ہے مولا امام رضا علیہ السلام کی کہ اذا نزلت بکم شدائد فاستغیثوا بنا، کہ جس وقت شدتوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں تم گر جاؤ، ہم سے استغاثہ کرو، ہم تمہاری امداد کریں گے، ہم تمہاری مشکل کو دور کریں گے اور مشکل گشا کریں گے ہم تمہاری. آئے چلے مولا امام رضا علیہ السلام کی اس نماز کو، ایک بہت آسان سی نماز ہے اور بہت آسان طریقہ ہے کہ نیت کریں کہ نماز میں پڑھتا ہوں، یہ نماز میں پڑھتی ہوں 2 رکعت مولا امام رضا علیہ السلام کی حاجت کے لیے قربتاً الی اللہ. اور جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کو ذہن میں اپنے آپ رکھ لیں کہ کس حاجت کے لیے، کس مشکل کے لیے، کس پریشانی، کس گرفتاری کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں. اس حاجت کو اپنے ذہن میں رکھے رہیں اور انشاءاللہ اپنی اس حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے نیت کر کے آپ کھڑے ہو جائیں نماز کو پڑھنے کے لیے. خیال کیا جائے کہ جہاں نماز پڑھیں لوگ ڈسٹرب کرنے والے نہ ہوں وہاں پر، کہ باقاعدہ طور سے خدا سے لو لگائی جا سکے. 2 رکعت نماز ہے، عام سی نماز جیسے صبح کی نماز پڑھی جاتی، اسی طرح نیت کے بعد سورہ الحمد کے بعد 13 مرتبہ سورہ انا انزلنا، دونوں رکعت میں، جیسے پہلی رکعت ویسے دوسری رکعت. جب نماز ختم ہو جائے، نماز ختم ہونے کے بعد سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں جانے کے بعد یہ دعا ہے، اس دعا کو پڑھا جائے پیشانی کو، یعنی نماز جب ختم ہو چکی، آپ نے تسبیح وغیرہ پڑھ لی کہ بغیر کسی سے بات کیے ہوئے سجدے میں آپ چلے جائیں. سجدے میں جانے کے بعد اس دعا کو پڑھا جائے: اللہم یا فارج الہم و یا کاشف الغم و مجیب دعوت المضطرین یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ صلی علی محمد و آل محمد ورحمنی رحمتاً
तुत्फी बेहा अन्नी गज़बका व सखतक व तुगनियनी बेहा अन रहमतिन मिन सिवाक। कि इस दुआ को आप पढ़ें और उसके बाद खुदावंद आलम से, बहरहाल इसका तर्जुमा भी कर दूं कि आप खुद वाज़े हो जाएगा। ऐ अल्लाह, ऐ परेशानियों को दूर करने वाले, ऐ गमों को मिटाने वाले, मेरे गम को मिटा दे। ऐ परेशान लोगों की पुकार पर जवाब देने वाले, ऐ दुनिया में रहम करने वाले, आखिरत में खास रहम करने वाले। दुरूद नाजिल फरमा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर और मुझ पर रहम कर दे। खुदाया, तुझे उस रहमत का वास्ता जिसके ज़रिए अपने गज़ब की आग को तू ठंडा करता है, मुझ पर वो आग को ठंडा कर दे और मेरी इमदाद फरमा और मुझे बेनियाज कर दे। अपनी उस रहमत के ज़रिए अपने सिवा तमाम लोगों से इसको पढ़ा जाएगा और पढ़ने के बाद फिर दोबारा आप अपने दाहिने रुखसार को, राइट की तरफ को ज़मीन पर रखेंगे और ज़मीन पर रखने के बाद इस दुआ को पढ़ा जाएगा। या मुज़िल्ला कुल्ले जब्बारिन अनीद व मुइज़्ज़ा कुल्ले ज़लील व हक़्क़ुका कद बलगल मजहूद मिन्नी फ़ी अमरिन कज़ा कज़ा फ़र्रिज अन्नी या करीमो या करीमो या करीम। अपना दाहिना रुखसार रख के इस दुआ को पढ़ा जाए और इसी तरह अपना लेफ्ट की तरफ बायां रुखसार रख के इसी दुआ को पढ़ा जाए। या मुज़िल्ला कुल्ले जब्बारिन अनीद, ऐ जलील कर देने वाले हर मुतकब्बिर बादशाह को, हर दुश्मन को, ऐ इज्जत देने वाले हर पस्त इंसान को। परवरदिगार, तुझको तेरे हक का वास्ता है कि मैं अपनी मुराद के लिए तेरी बारगाह में हाजिर हुआ हूं। मेरे इस मसले को हल कर दे, मेरी इमदाद फरमा, मेरी मुश्किल को हल कर दे। ऐ मेरे करीम खुदा, ऐ मेरे करीम खुदा, ऐ मेरे करीम खुदा। और उसके बाद पेशानी अपनी सजदे में रख ले और खुदावंद आलम से जो भी हाजत है, जो भी दुआ है, परवरदिगार से तलब करे, माबूद से तलब करे। ये नमाज बहुत ही मुजर्रब नमाज है। और इसके बाद अगर इम्कान में हो आपके तो ज़ियारत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जो मफाती के अंदर भी मौजूद है, ज़ियारत मखसूस मौला रज़ा की, कि उस ज़ियारत को पढ़ें और मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से इमदाद तलब करें। इस नमाज को मुतवातिर अगर पढ़ा जाए तो बहुत अच्छा है। बल्कि यहाँ तक भी बाज़ लोगों ने ताकीद की है कि इस नमाज को अगर 40 दिन तक अगर पढ़ा जाए तो कैसी भी हाजत हो, नामुमकिन है कि वो पूरी ना हो, यानी वो पूरी होना ही होना है। अगर ज़ात मासूम पर एतक़ाद है, अगर ज़ात मासूम पर भरोसा है तो इंशाअल्लाह ज़रूर खुदावंद आलम इनायत करेगा। इमाम रज़ा ये वो मासूम हैं, कहते जिनकी बारगाह से इंसान तो इंसान, हैवान भी इनके पास से लेकर गए। बहुत से वाक़यात आपने मौला रज़ा के सुने हैं, बहुत से वाक़यात जो मौला रज़ा की बारगाह में पेश आए हैं आप सुनते रहते हैं। और उस हैवान का भी वाक़या, जो हिरन का वाक़या कि मौला रज़ा की बारगाह में उसने भी इमदाद मौला रज़ा से की थी, मौला रज़ा ने उसकी मदद की थी कि लक़ब पड़ा मौला रज़ा का ज़ामिन आहू। दुआ करते हैं मौला इमाम रज़ा से, ये मौला इमाम रज़ा जिनकी मुश्किल परेशानियां हैं, जिस तरह की भी आका उनकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियों को दूर कर दें। ये परवरदिगार, ये मेरे पालने वाले माबूद, जो हजरात मुश्किल गिरफ्तारियों में हैं, जिस तरह की भी उनकी मुश्किल परेशानियां हैं, पालने वाले माबूद तू बेहतर जानता है। खुदाया हम सब की, इन सब की जो मुश्किल गिरफ्तारियां उन्हें दूर कर दे। ये परवरदिगार, जिनकी भी बारगाह है मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में आने की तमन्ना है, जिनके भी दिलों में, जिन हजरात के
उन सब को बारगाह इमाम रऊफ़ में, बारगाह इमाम रज़ा गरीब में आना नसीब कर दे। परवरदिगार रोज़ी रोज़गार के दरवाज़ों को खोल दे। मेरे माबूद ये हाथ तेरे अलावा किसी के सामने न फैले, ये सर तेरे अलावा किसी के सामने न झुके। पालने वाले हमें कोई गम न देना गम अहले बैत के अलावा। पालने वाले जो हमारे हक़ में खैर है वो इनायत कर दे। ये खुदाया जो शर है उसको भी खैर से बदल दे। परवरदिगार पालने वाले जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद कर दे। जिन्हें औलाद दी है उनको नेक और सालिह बना दे। परवरदिगार जिन्हें तूने औलाद दी है, जो अपने बच्चों के शादी ब्याह और रिश्तों के लिए परेशान हैं इस वक्त, वो वालदैन खुदाया उन्हें बराबर के रिश्ते इनायत कर दे। परवरदिगार ये मरीज़ी बीमारी जो दुनिया भर में फैली पड़ी हैं, ये वबाएँ, ये बीमारियाँ, खुदाया इस मरीज़ी इस बीमारी से तमाम शियाने हैदर कर्रार को, मोमिनीन को महफूज रखना। परवरदिगार तुझे वास्ता देते हैं इमाम जवाद का, ये मेरे माबूद जो रोज़ी के दरवाज़े बंद हो चुके हैं, इमाम जवाद के सदक़े में, उनके जूद व सखा के सदक़े में परवरदिगार रोज़ी के दरवाज़ों को खोल दे। हमारी ज़िंदगियों में खैर व बरकत इनायत कर दे। माबूद जिनके वालिदैन दुनिया में ज़िंदा हैं उन्हें तूल हयात इनायत कर दे। जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं उन्हें करवट करवट चैन दे दे। परवरदिगार ये मेरे माबूद जिन जिन हजरात के दिलों में भी मासूमीन की बारगाहों में आने की तमन्ना है, मासूमीन की ज़ियारतें करने की तमन्ना है, हज ज़ियारत की तमन्ना है, परवरदिगार उन सब को बारगाह मासूमीन में हुजूर का शरफ दे दे। खुदाया हज ज़ियारत की हम सब को तौफीक दे दे। जो जो रुकावटें ज़ियारतों में हैं परवरदिगार उन तमाम रुकावटों को बरतरफ कर दे। ये परवरदिगार जो इस्तिकबार हुकूमतें उन्हें ज़लील खाल और रुस्वा कर दे। परवरदिगार ज़माना बहुत बुरा है, हमारे बच्चों की इस्लाह कर दे, उन्हें सही मानों में इस दीन हक़्क़ा पे चलने की तौफीक इनायत कर दे। खुदाया यह हाथ तेरी बारगाह में फैला है। माबूद परवरदिगार पालने वाले तमाम मोमिनीन को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की इनायत कर दे। खुदाया जो खिदमत कर रहे हैं इस दीन की, जिस लिबास में भी कर रहे हैं, जिस तरह से भी कर रहे हैं, परवरदिगार उनकी इन खिदमात को कबूल कर ले और तौफीक़ात में इजाफ़ा कर दे। माबूद तुझसे दुआओं में जो दुआ है, मुंजी बशरियत मुंजी दो आलम हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे दे। ये परवरदिगार पालने वाले वो दिन भी दिखा दे, वो दिन भी दिखा दे। परवरदिगार मौत से पहले जन्नतुल बकी पर भी हम सबको साया देखना नसीब कर दे। इंशाअल्लाह इस हक़ीर को भी दुआओं में याद रखिएगा और मैं भी आप सबके लिए इंशाअल्लाह दुआगू हूँ और हमेशा दुआए खैर में याद ही किया करता हूँ। चलें इंशाअल्लाह जैसे अभी मुलाकात हुई है किसी और मौके पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।